watching the News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. It's been 200 days and 196 days to be precise since the agitation against the 3 farm laws brought in by the centre have been going on. Now, the basic premise on which this agitation was started, and if you remember the utterances of all the leaders of these anti-farm law protests, is that the MSP and the mandi system will end. It will be the death of MSP, farmers will be beggared, there will be no buyers for their produce. Now let's put in front of you some facts. Those were the claims made over the last 196 days, and these are the facts. The facts are that the government has now hiked the MSP of 17 kharif crops, including paddy, cotton and groundnut. This comes on the back of a hike in the MSP of Rabi crops that was done in September, and a record procurement of wheat that was also done by the centre. Now this hike, and let's take a look at a graph which will make it quite clear to you that this hike is actually higher than what we saw last year. So the amount of money that farmers were getting for their produce last year, this time the centre has surpassed even that. And at the end of the day, what really matters is how much more money does a farmer get over the cost of production. If I'm spending 1 rupee to produce a quintal of wheat, how much more over and above that 1 rupee is coming into my pocket? Let's look at some more data. The cost of production, the expected return over the cost of production is as high as 85% in the case of bajra, followed by urad, which is at 65%, and tur dal, which is at 62%. For the rest of the crops also, the return over the cost of production is well in excess of 50%. And when you hear all of this data, always remember that what we're being told is that there will be no money in the pockets of farmers because the backbone of the entire procurement regime, which is the minimum support price, is going to die a slow death. The government is going to do away with it. And here is what the reality of MSP is. It is being constantly hiked. Now, these are facts on the table. But oblivious to it all, the anti-farm law protests continue. Already they have been brought into question for being extremely irresponsible in the time of a pandemic, for being super spreaders. In fact, they have also been accused of lawlessness. Several cases where stone pelting confrontations have taken place. But now with actual money being put in the pocket of farmers increasing, and the increasing hobnobbing of farm protest leaders with politicians, one is compelled to ask, what really is at the heart of this protest? When you look at the facts on one side and the optics of political gatherings on the other, what really is at the heart of these protests? Farmers' interests or political interests? You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Okay, Mr. Rakesh Tikait, who is the head of the Bharatiya Kisan Union and one of the main faces of this entire agitation, is joining us live. Rakesh Tikait ji, पहले जो रबी की फसल है उसके MSP इंक्रीज किया गया, अब खरीफ के जो क्रॉप्स है उनकी MSP बढ़ा दी है सरकार ने, पर आप तो कह रहे हैं पिछले 200 दिनों से कि MSP खत्म हो जाएगी, तो फिर ये सरकार अगर MSP खत्म करना चाहती है तो MSP लगातार बढ़ा क्यों रही है? उस पर खरीद तो करवा दो जी। मेन सवाल ये है हमारा, पहले आप मान रहे हैं ना MSP खत्म नहीं हुई है, जो बढ़ा रहे हैं। पहले एक सवाल का जवाब तय कर लेते हैं, MSP खत्म हुई है कि नहीं हुई है? क्योंकि आपने कहा था MSP खत्म हो जाएगी। MSP सरकार खत्म कर रही है क्या? ये तो खत्म ही है। जब खरीद नहीं हो रही तो MSP तो खत्म ही है। भाई कितने % लोगों की खरीद होती है? हमने ये कहा है कि सरकार खरीदे या उसको बाजार खरीदे, MSP पे एक कानून बन जाए कि उसके कम पे खरीद नहीं होगी।
किसी को देनी है तो आदमी तो दान में भी दे देता है ना। अगर मुझे फ्री दे दिया राकेश टिकैत जी, तो मैं दे आपसे दूंगा। मैं फिर से वही बात पूछूंगी। आपने कहा एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब हमारी बात आप मैं आपको दिखा रही हूं कि एमएसपी पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा है। पिछले साल अगर हम बात करें मूंगफली की तो 5,275 रुपए पर क्विंटल था, बढ़ाया गया था। इस बार 5,550 रुपए क्विंटल बढ़ाया गया है। साल दर साल ये सरकार एमएसपी बढ़ा रही है और आप लोगों को बता रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो रही है। आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं, खत्म तो दूर, ये तो और बढ़ती जा रही है एमएसपी। तो दोनों भाई सर आप अब दूसरी चीज बोल रहे हैं। अभी मैं बिक्री पे भी आऊंगी, अभी पहले आप ये बताइए, जो आप बोलते हैं कि एमएसपी खत्म हो रही है, आप मान रहे हैं कि वो बात गलत है? एमएसपी ना खत्म हुई है ना खत्म होगी, और जैसे प्रधानमंत्री ने बोला था एमएसपी है, थी और रहेगी। एमएसपी है और रहेगी और रहेगी। एमएसपी है, थी और बढ़ेगी और बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन उसकी खरीद की गारंटी कौन देगा? खरीद की गारंटी कौन देगा? क्या जो वो है उसको राकेश टिकैत जी में ही दाल आप फिर से मुद्दा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात पूछ रही हूँ। मुद्दा आप किसानों को बताते हैं और मैंने खुद सुना है वहां लोगों को बोलते हुए, जिनको ये बताया गया है कि अब तो एमएसपी खत्म है। एक किसान को क्या चाहिए? उसको ये होना चाहिए कि भाई सरकार जो एमएसपी देती है वो अभी बनी रहेगी। आपने उनको बताया सरकार एमएसपी खत्म कर रही है। मैं आपको दिखा रही हूं आंकड़े कि खत्म होना तो दूर, एमएसपी थी, है, रहेगी, बढ़ेगी। तो आप जो बात बता रहे हैं क्या वो गलत है? और बन जाए। क्या आप वो बोलना बंद कर देंगे कि एमएसपी खत्म हो रही है? मैं कह रहा कि इस पे कानून क्यों नहीं बनता? भाई रेट बढ़ा दिए। आप ये बात मानेंगे कि एमएसपी लगातार बढ़ रही है? आप ये बात मान रहे हैं एमएसपी लगातार बढ़ रही है? मैं कह रहा कि जो मैकेनिज्म है बढ़ने का वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। और फिर बढ़ने का सवाल तो जब है, बढ़ने घटने का तो जब है, किस मैकेनिज्म से बढ़ना चाहिए? हमने वो मान लिया है। चंद्रा कमेटी की एक रिपोर्ट थी, उस कमेटी में हम भी थे। वो एक रिपोर्ट भारत सरकार को हमने सौंपी थी जी। चंद्रा कमेटी की एक रिपोर्ट है, उसका मैकेनिज्म बढ़ने का क्या है, उसके आधार पर बढ़ जाए। जो इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था जब बीजेपी आई, इन्होंने अपना घोषणा पत्र लेकर आए, इन्होंने ये कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे और जो लागत आएगी, लागत में 50% जोड़ के हम उसको देंगे। तो फार्मूला लागू कर दो और उसके आधार पे अब जो डिमांड है, जो धरना यहाँ पर चला हुआ है, आपने ये धरना ये कि जो 3 कानून है, ये आपने बिल्कुल सही बात की। आपने बिल्कुल सही बात की। आप बिल्कुल एकदम सटीक मुद्दे पे आए। आपने बोला कि हमें ये बताया गया था कि जो लागत है, यानी कि किसी चीज को उगाने में जो हमारी लागत होती है, उससे 50% बढ़ा करके हमें पैसा दे दो, वो एमएसपी होनी चाहिए। इस बार जो बढ़ाया गया, सुन तो लीजिए, आई एम श्योर आपने पढ़ ही लिया होगा अभी तक। आपके और जो लोग देख रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए एक बार फिर से बता देती हूं। इस बार जो एमएसपी बढ़ाई गई है बाजरे के लिए 85% ज्यादा है लागत के ऊपर। उड़द दाल के लिए है 65 यानी कि 65% लागत के ऊपर। तूर दाल के लिए है 62 यानी कि 62% लागत के ऊपर। और जो बाकी हैं उनमें भी लागत के 50% ऊपर दी गई है। जो आप कह रहे हैं हमें ये प्रॉमिस किया गया था, 50% से ऊपर लागत के ऊपर एमएसपी लगा करके दिया जा रहा है। आप सुन तो लो, अब आप सुन तो लो। ये तो वह कागज है जो आपने पढ़ लिए। ये है A2+FL, C2+FL की बात करी थी इन्होंने। जो घोषणा पत्र है ना, वो घोषणा पत्र मंगा लो इसका, और उसके आधार पर जो लागत आ रही उस पर 50% जोड़ के कर लो। जो इन्होंने 62% करी, उसमें से 12% हम ही कह देंगे कम दे दो। आप 50% ही दे दो, 62 क्यों दो? मतलब कागजों में दिखा दिया और तो आप कह रहे हैं कि ये जो 62% बता रहे हैं ये आंकड़े घुमा रहे हैं। ये गलत है, गलत है, गलत है।
ये क्या होता अच्छा। है कि तो ये आपने जो इसमें फॉर्मूला जमीन दिया की है लागत उस हिसाब से नहीं है, होगी। स्वामीनाथन जो कमेटी के किसान फॉर्मूले खेत के में हिसाब से है। अच्छा, नहीं, स्वामीनाथन कमेटी का जो फार्मूला है उससे भी नहीं है, उससे भी नहीं है ये। उसको भी ये कहते हैं कि हमने दे दिया, लेकिन जमीन की कीमतें नहीं इसमें जोड़ी, जमीन की जो किराया है वो नहीं जोड़ा, और जो खेत में मजदूर काम करता है उसकी मजदूरी नहीं इसमें जोड़ी। तो ये दो चीज़ और जुड़ जाएगी। तो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे C2+50 वाला जो फार्मूला है उसमें उसकी लागत निकल जाएगी, और लागत पे जो प्रॉफिट आएगा वो 50% जोड़ के इन्होंने देने की बात करी थी। वो दुआ दो तो वो हाँ, किसान बेसिकली उसको भी मान जाएगा। बेसिकली आपने जो फॉर्मूला ये है, आप कह रहे हैं कि है, आप मजदूरी उसको का मान कॉस्ट जाएगा, वो सब भी और जोड़ा फिर जाए, गारंटी- लैंड रेंट जोड़ा जाए, यहाँ पर सिर्फ उगाने की जो लागत है उसके ऊपर जोड़ करके आपको एमएसपी दिया गया है। आप कह रहे हैं ये भी नाकाफी है, ये बहुत कम है, पर आप अभी भी मेरे एक सेंट्रल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि एमएसपी खत्म होने की बजाय बढ़ रही है, इस पे हम इत्तेफाक रखते हैं कि एमएसपी बढ़ाई गई है, ये आप मानते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि बढ़ने, अब मैं सवाल का दे देता हूँ ना, बढ़ने घटने का तो जब सवाल आओगे जब इस पर खरीद हो जाएगी। भाई खरीद भी तो करेगा ना, मैंने लिख दिया कुछ ये दूंगा, अच्छा। और देने का है नहीं, उसकी खरीद है नहीं, पैसा तो वो मिलेगा ना जो किसान को पैसा मिलेगा, उसके जेब में तो किसान के हो जाएगा। अब बाजरा है, बाजरा उन्होंने बढ़ा दिया कि जी हमने बढ़ा दिया, बाजरे की कीमत बढ़ा दी, 2100-2200 रुपये उन्होंने कर दिया बाजरा, और बाजरा बिक रहा है 1100 रुपये में, आधे रेट में बाजरा बिक रहा, तो किसान को तो 1100 रुपये पर क्विंटल मिलेगा ना, उसका बाजरा तो 11 रुपये किलो बिक रहा है। आप कह रहे और हैं, सरकार ने कहा जी हमने तो देखो आप कह बढ़ा रहे दिया। हैं कि इसकी खरीद नहीं हो रही है। अब मैं कुछ खरीद के आंकड़े आपको देती हूं, जो कि बेसिकली प्रोक्योरमेंट व्हिच हैज हैपेंड, जो अभी तक खरीद हुई है। अगर हम सिर्फ गेहूं की बात करें, गेहूं की बात करें तो इस बार रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट हुआ है सिर्फ गेहूं का, और वो सरकार ने ही किया है। एमएसपी पे 418 लाख टन गेहूं खरीदा गया है, और जो टोटल पैसा दिया गया है वो 82,000 करोड़ से ज्यादा, 82,600 करोड़ रुपए एमएसपी पे सरकार ने दिया है। तो आप कह रहे हैं कि खरीद हो नहीं रही है, पर इस बार रिकॉर्ड खरीद की है सरकार ने, या आप कह रहे हैं ये भी आंकड़े गलत है? ये कह रहा कि जिस किसान ने पैदा कर दी तो उसकी क्या जिम्मेदारी है, सबकी खरीद नहीं होगी, सबकी खरीद नहीं सरकार कर रही, तो बाजार तो खरीदते हैं ना, बाजार सस्ते रेट में खरीदता है। आप राकेश जी, सबका कैसे खरीद सकते हैं? अंदर जाओ आप क्या सरकार आप कह रहे हैं, एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि सरकार ने रिकॉर्ड खरीद की है। आप कह रहे हैं रिकॉर्ड ठीक है, हर किसान की खरीदी कर ले, नहीं खरीद सकते तो बाजार, अगर लाखों किसान है इस देश में, हर किसान का बाजार उससे कम पर तो हर जितना प्रोड्यूसर सब सरकार खरीद ले। मैं कह रहा कि सरकार नहीं खरीद सकती तो बाजार तो खरीद सकता है, बाजार उससे सस्ते पर ना खरीदे, ये कानून बना दो आप। भाई बाजार खरीदता है तो उससे सस्ते पर ना खरीदे, वो उसके लिए कानून बन जाए, उसी के लिए तो ये आंदोलन है। क्या कंज्यूमर को सस्ता मिलता है? तो यानी कि फ्री मार्केट बेसिकली आप, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, राकेश जी आप मुद्दे को बार बार बदल रहे हैं। बड़ी अभी हम दूसरे उस डिबेट पे चले जाएंगे कि मार्केट को कभी सरकार नहीं बोल सकती कि आप इतने में ही बेचो ही बेचो। जब भारत सरकार ने ये तय कर दिया है, वो तो मार्केट डिसाइड करेगी ना। भारत सरकार ने ये तय कर दिया कि आपने बात शुरू की थी टिकैत साहब, आपने बात शुरू की थी, अब आप मुद्दा बदल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि कोई प्राइवेट जो कंपनी खरीदेगी वो भी उसको जबरदस्ती सरकार कहे कि इतने ही पैसे में वो आपसे खरीदी करे। हाँ, क्योंकि आपने पूरी बात की शुरुआत की थी एमएसपी से, एमएसपी से बात शुरू होकर के अब फ्री मार्केट पे आ गई है कि पूरे देश में हर कोई एक ही रेट पे खरीदे। ये तो किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होता। एमएसपी से नीचे पे क्यों खरीद होगी? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। एमएसपी क्योंकि सिर्फ सरकारी खरीद के लिए होती है, प्राइवेट कंपनी को आप नहीं कह सकते। प्राइवेट कंपनी पर सरकार ऐसे रूल नहीं डाल सकती, ये तो किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होता राकेश जी। अच्छा, मतलब किसी को लूट क्यों नहीं हो सकता? भाई किसी को व्यापार करना है, हम ये रेट बेच रहे हैं, किसी को व्यापार करना है वो मत करे व्यापार, दूसरा काम कर ले। कानून तो सरकार बना सकती है।
किसी को नहीं खरीद रहा, हमको उसके घर बेचने जाएंगे। टिकैत साहब, किसी को जरूरत होगी व्यापारी को टिकैत आएगा साहब, हमसे आप लेने। बताइए, लेकिन आप सरकार बताइए, support आपके तो करेगी या नहीं करेगी? आपके पास गाड़ी होगी, बताओ, आपके पास गाड़ी होगी, क्या आप चाहते हैं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसी हो जिसको सरकार बोले कि बस 2 लाख की अपनी गाड़ी बेच सकते हो, चाहे तुम्हारी गाड़ी छोटी हो, बड़ी हो, किसी को खरीदनी हो, नहीं खरीदनी हो, 2 लाख से ऊपर तुम अपनी गाड़ी बेचोगे ही जरूरत होगी तो ऐसा हम खरीद किसी लेंगे। देश में, दुनिया में कहीं भी होता है? किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में होता है? बताइए टिकैत साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो यही है कि प्राइवेट जी, कंपनी बताओ। को सरकार एकदम कंपेल कर दे कि आपसे इतने ही में ही खरीदा जाए। ये तो दुनिया में किसी भी जगह पे नहीं होता है। एनीवे, मैं इससे आगे बढ़ती हूँ। एक बात तो तय है, आप मानेंगे ना माने, उस बात को आप बोले ना बोले, एमएसपी बढ़ी है, एमएसपी बढ़ी है, और एमएसपी जो आपने 200 दिन पहले बोला था कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, ना वो धान की एमएसपी खत्म हुई, ना वो गेहूं की एमएसपी खत्म हुई। ये कह रहा कुछ नहीं तो ये हमेशा बढ़ी है। और खरीद नहीं हो रही, आप खरीद नहीं करोगे, आप खरीद भी नहीं करोगे, आप कानून भी नहीं बनाओगे, आप जनता को, किसानों को लूटने का काम करोगे, उस पे कानून अगर तो आप बनाने का राइट है ना? नहीं ये है। बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि किसानों की खरीद नहीं हुई है, तो जो 132 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा है सरकार ने, वो 132 लाख मैट्रिक टन गेहूं किधर से आया है? अगर किसानों की कोई बिक्री नहीं हुई, 132 लाख मैट्रिक टन जो गेहूं अभी बिका है, किधर से? अरे आप सुनो, किधर से? आप बताइए। आप वकील भी हो गया, आप सुनते हो नहीं, आप अपनी बात कह रहे। आप ये इसलिए खरीद करता है, जैसे गेहूं है, जो मार्केट रेट उसका जो एमएसपी है 1975 रुपये पर क्विंटल है, बाजार में उसके रेट घट गए जैसे ही किसान की फसल आई। ये जो कानून बने हैं, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने यहाँ गोदाम स्टॉक करते हैं, ये मार्केट में उसको डाउन करा, टिकैत साहब, और अब 1400-1500 रुपये पर क्विंटल गेहूं का रेट टिकैत है। साहब, अच्छा सुन तो लो आप, टिकैत साहब, आप सुनने की मैं तो आपसे फिर कैपेसिटी से वही रखोगे या सवाल नहीं? एक दूसरी आप पहले भाषा बात में सुनो, आप पूछना बात सुनो पहले, चाहूंगी, बात क्योंकि सुनो पहले, आप मुद्दे बात से सुनो, हट रहे हैं। आप बात आपने सुनो पहले। कहा आप कि बात तो सरकार सुनो। एमएसपी बना रही है पर खरीद आप नहीं बात कर तो रही। सुनो। ऐसा मैं नहीं, आपको ऐसा बता रही हूँ कि नहीं। 132 लाख आप मैट्रिक टन ज्यादा खरीदी बड़े हो सरकार ने जाओगे। की है। आप पहले बात सुनो। अगर किसान से नहीं आया 132 लाख मैट्रिक टन, तो किधर से आया? पहले बात सुनो, जो किसी क्वेश्चन किसान का तो सुनो खरीदा पहले। होगा ना सरकार ने। आपने क्वेश्चन करा है ना, तो मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे, आप तो कहीं और ले जा रहे हैं बात को। मैं जवाब ही तो दे रहा हूँ ना। टिकैत साहब, आपने कहा, आप मैं सुन लो पहले। सवाल को दोबारा पूछ लेती हूँ, शायद मैं ठीक से आपको सुना नहीं पाई। दोबारा आपने क्यों कहा पूछोगे? मैं उसका सरकार जो ने आपने एमएसपी पूछा है, बनाई, उसका उत्तर देता पर हूं। एमएसपी का क्या फायदा जब खरीद ही नहीं आप होती बात है? तो सुनोगे मैं ना, आपको बता बीमारी रही है हूँ क्या? 132 तब लाख बीजेपी का मैट्रिक प्रवक्ता टन होगा, खरीदी मैंने हुई कहा है, किधर से आया? आप अच्छा बात तो सुनो आप पहले, उसको ही तो बता रहा हूँ कि कहाँ से आया। बताइए। आप पहले सुन लो, दर्शकों को भी सुनने दो कहाँ से आए, आप बीच में डिस्टर्ब मत करो। हमने ये कहा कि अब बाजरे का रेट 1100 रुपया क्विंटल मार्केट में है, सरकार का एमएसपी 2100 रुपया है, जो मार्केट में रेट सस्ता है, व्यापारी उसको खरीदता है सस्ते में और सरकार को बेचता है महंगे में। सरकार की जो एजेंसी है वे और व्यापारी कंपनी मिले हुए हैं, इसलिए ये आंकड़ा आता है, किसान से खरीद नहीं होती। अब आगे समझ में आपकी कहाँ से आता है ये? अच्छा, जो आंकड़ा आता है कि इतना खरीद करी। अच्छा, कानून जब बन जाएगा, बाजार खरीद दो ठीक है, या व्यापारी खरीद दो या सरकार खरीद दो, उसके कम पे खरीद नहीं होगी। ये हमने आप कहा कह है। रहे हैं कि ये सारा जो गेहूं खरीदा गया है, धान खरीदा गया है, वो व्यापारियों से खरीदा गया है। मैं आपको कुछ किसानों की बात सुनाना चाहती हूँ। पंजाब के ये सारा किसान, नहीं। जहाँ के बड़े सारे साथी आपके साथ भी आकर के सुन लो टीकरी ना। पे, गाजीपुर पे अरे बैठे हुए हैं। एक दो लोगों की बात सुन लीजिए, ये भी किसान ही है, इनकी जेब में पैसा आया है। राकेश जी, टिकैत साहब, इनकी जेब में पैसा आया है, ये किसान ही है। मानेंगे आप, ये भी किसान है, खेतों में खड़े, इनकी बात सुन लीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं करूंगा बीच में।
मैं आपसे, आप मेरे से बात करते हो तो करो, मैं छोड़ नहीं नहीं, बात नहीं करा रही, मैं आपको सुना रही हूँ किसी और किसान की आवाज, मैं बात तो सुनो जिनसे मेरी, 1 to 1 ही है। अरे किसी और, चलिए आप किसी और किसान की बात भी नहीं सुनना चाहते, ये बताइए, ठीक है चलिए, आप किसी और की बात भी नहीं सुनना चाहते, जो किसान खेत में खड़ा है पंजाब में, जिसके जेब में पैसा आया है, आप मेरे को ये बताइए। ऐसे मैं सुन लिया मैंने टिकैत साहब, आपकी पूरी बात सुनी। ऐसे नहीं, आप ये बताइए कि आप कल कलकत्ता में थे, कलकत्ता में मीटिंग का आपका मोटिव क्या था? हाँ, कलकत्ते का मीटिंग का बता दूं, वहां के किसानों के लिए आप बात करने गए थे कलकत्ते में। क्या कलकत्ते में मुख्यमंत्री से मिलने नहीं जा सकते हम? वो चुनी हुई पर आप तो किसान आंदोलन है, आप तो राजनीतिक आंदोलन ही नहीं है। हम क्यों? मुख्यमंत्री से मिलना कोई गलत चीज है? अगर अच्छा हम भारत सरकार से मिलें तो ये भी तो पॉलिटिकल है। भारत सरकार के हम संबंध में बात करेंगे तो ये भी तो पॉलिटिशियन है। हम कोई किसी लीडर से मिलने गए, हम टीएमसी के लीडर से मिलने गए, वहां पे हम मिलने गए बंगाल की मुख्यमंत्री से। जब यहाँ पे मीटिंग होती है, जो 12 दौर की हमारी भारत सरकार से बातचीत हुई, हम किसी बीजेपी के लीडर से नहीं मिले। वहां पे जब मिले हैं, हम मिले हैं भारत सरकार से। अगर उत्तर प्रदेश में हम मिलने जाते हैं तो उत्तर प्रदेश से मिलने जाते हैं हम वहां के मुख्यमंत्री से। हम कोई बीजेपी के अध्यक्ष से मिलने नहीं गए, हमको टीएमसी के अध्यक्ष से मिले। हम मिलेंगे उनसे तो फिर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। क्यों? आपने कहा आप तो मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं किसानों की आवाज उठाने के लिए। किसान, अरे हम मिलेंगे ना, हम उत्तर प्रदेश में जरूरत होगी हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, वहां के किसानों के संबंध में मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? हमको हरियाणा में जरूरत होगी तो हम मोहनलाल खट्टर से मिलेंगे, वहां के किसानों के संबंध में मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे मुख्यमंत्री से? मतलब देश में मुख्यमंत्री से मिलना कोई अपराध है? हमारे ऊपर कोई बैन है कि हम किसी स्टेट के मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते? 2 महीने पहले टिकरी बॉर्डर में एक किसान सोशल आर्मी के 2 लोग थे जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा कि उन्होंने वेस्ट बंगाल की एक युवती के साथ बलात्कार किया है। इस बारे में कोई बात हुई आपकी? क्योंकि वो बंगाल की हैं, आप मुख्यमंत्री से मिल रहे थे, एक बंगाल की युवती से बलात्कार हुआ टिकरी बॉर्डर। हमारे से कोई बात किसान आंदोलन के जो मेंबर थे। पुलिस अपना काम करेगी, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी। उसके पिताजी का हमने साथ दिया, रिपोर्ट दर्ज करवाई उनके खिलाफ, कानूनी कार्रवाई करेगी। जो कानूनी कार्रवाई वो होगी। हम उस लड़की के पिताजी के परिवार के साथ में हैं, उनको लेकर हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। यहाँ पे कानूनी कार्रवाई तो होगी, तो जो कानून है, किसान सोशल आर्मी टेंट लगा करके आपके साथ टिकरी पे बैठी कैसे हुई थी? क्या आपको पता था कि ये लोग इस तरीके के हैं? मैं ये कह रहा कि यहाँ पे ये तो किसान आंदोलन के बैनर के नीचे बैठे थे ना। यहाँ पे 25 लाख आदमी है। देश का कानून है, देश का कानून है। कोई गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें इन बिल का तो यानी कि आप मानते हैं कि जो 25 लाख आदमी है, काम करेगा कानून है, कोई और रूल ब्रेकर्स, कोई और क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं। संविधान है, कानून है। कोई गलत काम करेगा, मैं ये कह रहा कि कोई गलत काम करेगा तो उसके लिए तो पुलिस प्रशासन है ना। गलत काम करेगा, देश में धाराएं हैं। अगर कोई किसी का मर्डर करेगा 302 लगेगी, जेल जाएगा, उम्र कैद है उसमें। हाँ, वो तो कानून है, बट आपके मंच पे अगर कोई आदमी बैठा है तो उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मैं ये अगर 25 लाख यहाँ दिल्ली में ये सरकार बैठी हुई है और कोई गलत काम चोरी हो रही है, थानों में से जेब कट रही है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? वो थानेदार ले लगा। अरे वो पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ केस होगा। कोई चोरी करके चला जाता है, कोई मर्डर करके चला जाता है, तो उसकी क्या जिम्मेदारी लेगा? कोई इसके दिमाग में क्या है, खुरापात है, वो करके चला जाएगा तो उसकी कौन जिम्मेदारी ले लगा? वो पकड़ा जाएगा, उस पर केस रजिस्टर्ड होगा, कानून अपना काम करेगा। कोर्ट है, कानून है, कचहरी है, वे अपना काम करेगा। एडवोकेट है, अपने काम करेंगे। वे सबकी अपनी ड्यूटी है ना। तो आप मान रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी आप नहीं लेते, और जब क्राइम हो गया तो आप फिर विक्टिम के फैमिली का साथ दे रहे हैं। एनी हाउ, आई थिंक द फैक्ट्स आर आउट देयर। राकेश टिकैत जी, आप कह रहे हैं कि वी विल कंटिन्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर दीज फैक्ट्स आर अबाउट हाइक MSP, अबाउट प्रोक्योरमेंट।
We'll see what happens next. For the time being, thank you very much हमसे बात करने के लिए.